morning, students. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter 3, business environment. Now before understanding, first of all let us understand why we are studying this chapter. Now as we all know, the success of any business depends upon how efficiently it is internally managed. When I talk about internal management, it means how strong is its research and development team, how strong is its selling or marketing team, how the production process is done efficiently and effectively by reducing the cost and increasing the productivity, and so on. So success of any business depends upon this internal management. But it is also affected by various external forces, like what will be the effect on our business if there are changes in a government policy which are not in our favor, or if the competitors are moving much ahead as compared to that of our standing. How are our consumers assuming our product to be in the market? How our suppliers are supporting us? What the media is speaking about our organization and other institutions. However, these forces, they exist outside our business boundary, but still they do influence the performance of our business enterprise. Thus, the economic, social, political, and technological and other forces may operate outside a business enterprise but are part of our business environment. For example, if there is an increase in tax rate by the government, it is going to affect our cost of production. Our cost of production is going to increase. Because of increase in our cost of production, our price of the product will increase. And if the price of the product will increase, what will happen to demand? There will be decrease in the demand. Similarly, if there are any changes in the price which are offered by the competitors, it will also have an adverse effect on the demand of our product. Business, we will be forced to reduce our price in order to meet the competition, which may result in reduction in our profit margins. Or even if the NGOs or any negative advertising is done from the consumers, it is also going to affect the business. Now all these forces, it is not under the control of our business enterprise, but still they are going to affect our performance. So what do you understand by business environment? Business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business but may affect its performance. So let's briefly understand what this definition indicates. Sum total, ठीक है, सब मिला के किसका sum? Individuals मतलब कौन हो सकते हैं? They can be our competitors, they can be our consumers. Similarly, institution यानी again our the NGOs, ठीक है, they can be the institution. And other forces also like special forces or general forces that I'll explain you in detail after some time. So ये सबका काम क्या है? ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, they are outside the control, but still अगर इनमें से किसी ने भी किसी अलग वे से रिएक्ट किया तो हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है. नाउ कमिंग टू अदर फोर्सेस, देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. एक होता है स्पेसिफिक फोर्स, एक होता है जनरल फोर्स. Now what do you mean by specific force? These forces, the external forces which are specific to a particular business organization only. That is, अगर उस business organization के suppliers कोई है जो उनका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होने वाला है? वो पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही. सो दैट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक फोर्स. दूसरा होता है जर्नल फोर्स. जर्नल फोर्सेस मीन्स द एक्सटर्नल फोर्सेस विच इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल इंडस्ट्री एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग अंडर दी दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो, जैसे लॉकडाउन की वजह से क्या पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, ठीक है. अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? इट हैज अफेक्टेड डायरेक्टली अवर टेक्सटाइल मार्केट. इसके वजह से जो फॉर्म जो भी ऑपरेट कर रही है, जो ये टेक्सटाइल का कारोबार कर रही है, इट इज ऑल्सो गोइंग अफेक्टेड. तो ये इफेक्ट किसके ऊपर है? पूरे के पूरे इंडस्ट्री के ऊपर एक साथ हुआ है. सो दैट इज टर्म्ड एज जर्नल फोर्सेस. So when I am talking about business environment, we should remember certain important points that this environment, it is going to the special forces or the specific or the general forces that is going to affect our business. Moreover, whatever ये जो भी external forces है business environment में, all are interrelated. ठीक है. इसके अलावा ये जो भी फोर्सेस होते हैं, दे आर डायनामिक इन नेचर. ये कभी भी आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है. दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. The environments या ये जो external forces है, it keeps on changing because of change in technology या taste and preference या availability of new raw materials. So it is dynamic in nature. Moreover, it is uncertain. आप कभी भी predict नहीं कर सकते हो what is going to happen in future.
आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि 1 या 2 दिन के बाद गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट होने वाली है, या जैसे अगर स्टॉक मार्केट में आप डीलिंग करते हो तो स्टॉक मार्केट में क्या हाल होने वाला है, बढ़ने वाला है, घटने वाला, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. सो अगेन दिस फोर्सेस आर अनसर्टन. अगेन it is very complex in nature. Why it is complex in nature? Because a business may be able to, आप सिर्फ few forces को अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट आप हर फोर्स को अगर आपको हैंडल करना है तो कोई आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बता सकते हो जिससे कि आप सारे के सारे फोर्सेस को ठीक से कोऑर्डिनेट या हैंडल कर सको. तो इसकी वजह से क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो कंसिडरिंग दिस डेफिनेशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. Now, the very first importance of business environment is it enables the firm to identify opportunities and to get advantage. Now, अब हमें सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हमारा एनवायरमेंट होता है, भले इंटरनल एनवायरमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो, इंटरनल एनवायरमेंट हेल्प, यदि ये दोनों एनवायरमेंट मिला के इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग दी स्वॉट एनालिसिस. अब स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या है, आपके फर्म का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है. जब मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, इट इज दी इंटरनल मैनेजमेंट टास्क. ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट का काम है ये देखना, या इंटरनल फोर्स का काम है ये देखना कि व्हाट आर दी वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या उनकी वीकनेसेस क्या है. लेकिन जब मैं बात करती हूँ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की, दिस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय दी एक्सटर्नल फोर्सेज, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेज ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देती है, एंड सिमिलरली दे ओनली क्रिएट थ्रेट फॉर अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So the very first importance is it helps the firm to identify the opportunities and get the firm to take the advantage. Now this, अगर हमारा कोई भी एक्सटर्नल ट्रेंड है या चेंज है, अगर वो पॉजिटिव है नेचर में, तो इससे क्या होता है, it provides opportunity to the business organization so that they can improve their performance. अगर कोई भी बिजनेस फर्म ने ये अपॉर्चुनिटीज को टाइमली आइडेंटिफाई कर दिया तो इसके वजह से क्या हो सकता है, इट विल हेल्प दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम दी फर्स्ट मूवर. फर्स्ट मूवर मतलब पहला ऐसा फर्म जिन्होंने इनिशिएट लिया है वो अपॉर्चुनिटी को अपने एडवांटेज में उन्होंने कन्वर्ट किया, यानी दे आर हैव टेकन दी एक्शन इनटू फास्ट वे एंड दे विल बी एबल टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन दी इंडस्ट्री. जैसे फॉर एग्जांपल Samsung, they have identified the popularity and scope of smartphone, and they rode on the popular and advanced Google developed Android, whereas Nokia, they failed to identify the scope and they used their old OS system only, जिसके वजह से Nokia का जो मार्केट शेयर था, it has fall from 55% to 27%. एंड इवन इफ यू ऑल सी नाउ, जैसे जो भी फर्म कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अगर तुरंत ग्रैब कर सकती है, then they can take the advantages of the opportunity. So this help is provided by the proper analyzing of the business environment. The second is it helps the firm to identify the threat and early warning signs. जैसे अगर एक फर्म अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके उसको एडवांटेज ले सकती है, सिमिलरली अगर फर्म कोई मार्केट में कोई थ्रेट है और अगर वो तुरंत आइडेंटिफाई कर सके और अगर वो वार्निंग सिग्नल को ध्यान में रखते हुए अगर अपने मूव्स को आगे प्लान करे, तो अगेन इट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर दी कंपनी. सो अगेन एडवर्स चेंजेस अगर कोई भी होता है विच प्रूव्स टू बी थ्रेट टू दी बिजनेस, इट इज गोइंग टू हिंडर अवर परफॉर्मेंस. अगर आपने जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर दिया तो इट कैन हेल्प दी मैनेजर्स टू प्रिपेयर दी स्ट्रेटेजी सो दैट दे कैन कन्वर्ट देयर थ्रेट इनटू दी अपॉर्चुनिटीज. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं से ये न्यूज मिले कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले हैं चीपर रेट में, तो वो क्या है, ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को जल्द से जल्द अपडेट करने की जरूरत है, और अगर हमने उस पर टाइमली एक्ट नहीं किया तो वी माइट लूज अवर कस्टमर्स ऑल्सो. The next importance is it helps in tapping useful resources. Now ये हमारा जो environment है, it is a source of providing various inputs. जैसे it provides finance, it provides machines, raw materials, power, water, labor, etc. Similarly, business have also to supply various kinds of outputs to the environment in the forms of goods and services for customers. या गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, ठीक है. तो ये जो एक्टिविटीज है दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू प्रिपेयर इट्स पॉलिसी स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल फोर्स हमें क्या दे रहा है और हमसे क्या चाहता है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज. देन इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस. Now we have already seen कि बिजनेस एनवायरमेंट हमारा ये जो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, अगेन बिजनेस एनवायरमेंट इज एक्सट्रीमली डायनामिक, इट इज नॉट स्टेटिक, ठीक है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशन, एवर राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है. तो इसके वजह से क्या इट रिक्वायर्स कि हमारे जो मैनेजर्स है
ये सारे चेंजेस को जल्दी से जल्दी एडॉप्ट कर सके। एंड जो भी स्ट्रेटेजीज डेवलप करे वो सिर्फ नॉट ओनली इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द चेंजेस बट ऑल्सो यूज देम एज अ स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। जैसे आप देख सकते हो हर दिन नए नए कार के मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं एडिशनल फीचर्स के साथ या टेक्नोलॉजीज के साथ। मोबाइल फोन्स में भी सेम चीजें हो रही है सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर्स कैन बी अट्रैक्टेड। सो बिजनेस फर्म हैज टू बी वेरी मच एकदम वेरी मच आईफुल होना चाहिए कि कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो तुरंत से उसको अडेप्ट करके वो अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सके। देन इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। सिमिलरली अगर आप अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर एनालाइज कर सकते हो तो इट विल हेल्प अवर बिजनेस फर्म कि हम हमारे फ्यूचर प्लान्स को बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट कर सके एंड वी विल बी एबल टू कोप अप विद द एक्सटर्नल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री में कोई पॉलिटिकल चेंज होने वाले हैं तो बिजनेस एंटरप्राइज कैन एनालाइज दी बिलीव्स और दी वैल्यूज ऑफ पॉसिबल न्यू लीडर्स एंड दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दी चेंजेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दी परफॉर्मेंस। बिजनेस अगर कोई डायनामिक और बहुत अच्छे से चेंजेस को अडेप्ट कर सकती है देन इट विल बी एबल टू मीट दी मार्केट डिमांड और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी करारा जवाब दे सकती है। एंड इट अगेन अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहे और टाइमली आप आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस को सुटेबल वे में अडॉप्ट कर सकते हो तो इट विल नॉट हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट ऑल्सो इट विल हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड इन दी मार्केट फॉर दी लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एंटरप्राइजेस जो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट विद न्यू फीचर्स बेटर क्वालिटी दे विल बी एबल टू इंक्रीज देयर सेल्स वॉल्यूम। थैंक यू।